है। सीजीआई ने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखाते हैं। This is made, the onus shifts to the union to justify that the exercise of power had a reasonable nexus with the object of the proclamation. And C, the exercise of power by the President for everyday administration of the state is not ordinarily subject to judicial review. The argument of the petitioners that the union government cannot take actions which have irreversible consequences when a proclamation under Article 356 is in force is not accepted. The power of the legislature of the state under Article 357 to repeal or alter or amend a law enacted by Parliament in exercise of the power of the legislature of the state must be read in the context of the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state, pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast,
the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. It is reiterated in Section 3 of the Constitution of Jammu and Kashmir, which is unamendable. Sixth, the preamble of the Constitution of Jammu and Kashmir, Sections 3, 5 and 147 of the State Constitution, coupled with Article 1 of the Constitution of India, read with the first schedule, as well as Article 370, indicate in no uncertain terms that a system of subordination as understood by the definition of sovereignty exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. Seventh, all states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is a feature of asymmetric federalism, like Article 370, which became applicable to Jammu and Kashmir on the adoption of the Constitution. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And eighth, the limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Kaul was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose, to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. D. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370, Clause 3, to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly, where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then,
the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the constitution. When a constituent assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constitution. हम आपको बता रहे हैं तो 370 हटाने पर यह बड़ा फैसला जो है लिया गया है। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है, ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 370 से जुड़ी, अनुच्छेद 370 से जुड़ी सभी जज एक फैसले पर सहमत हैं। याचिका को चुनौती नहीं है, सीजेआई ने ऐसा कहा है, याचिका को चुनौती नहीं है। आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, पूरे ही मामले में ज्यादा क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज जिस तरह से 370 के मसले को लेकर जिस तरह से आज एक बेहद महत्वपूर्ण जो एक फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है, और जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ कुल 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच जो है जो इस मामले पर आज फैसला सुना रही है, तो इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उन तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियों को मैं बताना चाहूंगा, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी, इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। इसके साथ ही 370 एक अस्थायी प्रावधान है, अस्थायी नहीं। देखिए, इस शब्द के इस जो टिप्पणी के कई मायने निकाले जा सकते हैं और इसको समझा जा सकता है। इसके साथ ही जिस तरह से 370 को निरस्त करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यकता नहीं थी, ये टिप्पणी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जो 16 जो नई तारीखों पर जिस तरह से बाकायदा सुनवाई हुई थी, जिसमें कि विशेष तौर पर 5 अगस्त साल 2019 को जिस तरह से इस मामले में जो फैसला जो है उसको सुरक्षित रख लिया गया था, आज उस मामले पर आज फैसला सुनाया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जो तमाम जो फैसले पहले सुनाए गए थे इस मामले पर जो पहली जो दलीलें दी गई थी, उन दलीलों में इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया था कि धारा 370 को जब वहां से हटाया गया तो किस तरह से वहां पर विकास हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से वहां के आवाम के बीच में एक शांति बहाली हुई। तो इन तमाम मसलों पर विस्तार से दलीलें दी गई थी और 16 तारीखों पर जो सुनवाई हुई है उसी को आधार बनाते हुए आज फैसला सुनाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की गई और चीफ जस्टिस के द्वारा एक टिप्पणी की गई कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संसद या राष्ट्रपति की उद्घोषणा के तहत किसी भी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल था कि जिस तरह से कई जो याचिकाएं दायर की गई थी और उन याचिकाओं के तहत कहा गया था कि आखिर कैसे
370 को अचानक, जो अनुच्छेद 370 है, कैसे उसको अचानक हटा दिया जाता है? क्या देश के संविधान को जो संवैधानिक प्रक्रिया है इसको किस तरह से वहां से नजरअंदाज किया गया? तो इसमें साफ तौर पे कहा गया कि देखिए, सब जो भी काम हुआ था वो तमाम चीजें संविधान के तहत हुआ, कानून के तहत हुआ है, और उन तमाम प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में आज एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों की सीमाएं होती हैं। इसके साथ ही वो घोषणा के तहत राज्यों की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौतियों के अधीन नहीं हो सकता है, इससे अराजकता फैल सकती है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस इंडिया ने यह भी कहा कि दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला जो है आज वो आने वाला है। जिस तरह से इस मामले में आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आप जो फैसला जो है वो सुना रहे हैं, जिस तरह से अपनी टिप्पणियां जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फैसले अलग अलग लिखे गए हैं। जो आज जो फैसला सुनाया जा रहा है वो फैसले अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष जो है एक उस पर एक सहमति बनी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस मामले पर फैसला सुनाना शुरू कर चुके हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह मेरा है, माने कि वो अपना सुना रहे हैं कि वो उनके तरफ से क्या फैसला है। और इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस गवई, इसके साथ साथ जस्टिस कौल की सहमति वाली राय है। जस्टिस संजीव खन्ना से उन दोनों की सहमति जताई है। और इसके साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही थी, कोर्ट में तमाम दलीलें चल रही थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला जो है कोर्ट से आ रहा है। और इस वक्त में एक महत्वपूर्ण एक ब्रेकिंग देना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्वारा 370 को निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर कानूनी रूप से सही है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी कही जा सकती है। चीफ जस्टिस इंडिया के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा 370 को निरस्त करने का जो आदेश संवैधानिक तौर पर लिया गया था वो कानूनी रूप से सही है। यानी कि जो भी याचिकाएं दायर की गई थी उन याचिकाकर्ताओं को एक कहा जा सकता है कि उसको खारिज करने का एक सांकेतिक तौर पर एक जवाब मिल चुका है। लेकिन इस मामले पर फैसला अभी सुनाया जा रहा है, फैसला देने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इसलिए पूरे जो टिप्पणी जब तक नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक तौर पर आज कोर्ट के द्वारा ये बता दिया गया है कि जिस तरह से असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले पर अपील में नहीं बैठ सकते हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन्होंने कहा है कि निरस्तीकरण को दुर्भावनापूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। तो और इस पूरे लाइन को अगर समझा जा सकता है कि एक लाइन में पूरी जो फैसला है वो एकदम स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा 370 जो अनुच्छेद है उसको निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले पे अपील में वो नहीं सुना सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 370 को हटाने का मकसद जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। और देखा जाए जिस तरह से साल 2019 में जो एक फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो जिस तरह से वहां पर तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया, तो उन तमाम मसलों को ध्यान में रखे कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी उसी मामले पर आज कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। और इस वक्त में जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक कड़ी कही जा सकती है, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी चीफ जस्टिस को के द्वारा दिया गया, उसमें उस लाइन को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के फैसले पर अपील में नहीं सुना सकते हैं। इसके साथ ही निरस्तीकरण को दुर्भावनापूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। और इसके साथ साथ इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते हैं। यानी कि जो 370 अनुच्छेद को खत्म किया गया था इसमें किसी भी
कोई गलत सोच नहीं थी उसको हटाने का, या उसको ऐसा कोई दुर्भावनापूर्ण ऐसी सोच नहीं थी। तो ये भी टिप्पणी अपने आप में साफ तौर पे बताती है कि किस तरह से 370 के मामले पर जो तमाम दलीलें दी गई थी कोर्ट में, तमाम जो सुनवाई हुई और उसके बाद जिस तरह से कोर्ट का एक फैसला आ रहा है, तो इतना स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के फैसले पर एक तरह से कहीं न कहीं वो मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो है टिप्पणी का जो जिस तरह से बकायदा आ रही है, तो पूर्ण तौर पर वो उन तमाम दलीलों को अब बताया जा रहा है। दलीलों के मसले पर जो फैसले की जो पॉइंट जो है वो लगभग क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले पर अब साफ हो गया है लगभग कि इस जो धारा 370 से संबंधित जो तमाम याचिकाएं उस पर दायर की गई थी, तो उन तमाम याचिकाओं को कोर्ट ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। कोर्ट के द्वारा उन तमाम मसलों पर एक बड़ा फैसला जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। और साफ तौर पे समझा जा सकता है कि 370 को हटाने का मकसद जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर में पहले जिस तरह से हालात थे, जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से सिचुएशन बने थे, तो उस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और इस मामले को और बेहतर तरीके से समझते हैं जिस तरह से बकायदा इस मामले पर केंद्र सरकार का रुख है, जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में वहां पे कार्रवाई हुई, जिस तरह से बकायदा वहां पे कहा जा सकता है वहां विकास के लिए काम किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मसलों को ध्यान में रख के आज फैसला सुनाया जा रहा है। और आज का ये जो फैसला है कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जी, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला और ऐतिहासिक हम इसे कह सकते हैं। और साफ तौर से सीजेआई ने जिस तरह से जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मतलब कोई आंतरिक संप्रभुता इसमें नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि इतना बड़ा फैसला जब आ रहा है, तो आखिर जो इतनी बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता लगे हुए थे, आखिर उनका अब क्या? देखिए, याचिकाकर्ता की अगर बात हो रही है तो इसमें एक सबसे एक महत्वपूर्ण नाम मैं बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान में वकील भी रहे हैं, कपिल सिब्बल। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि वो उनको कपिल सिब्बल जो है पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कुछ लड़ाइयां जो होती हैं वो लड़ने के लिए की जाती है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर बात करें तो जस्टिस संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है इस पूरे मामले में आज जो है फैसला जो है वो सुना रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 16 दिनों की ये सुनवाई होने के बाद 5 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज इस मामले में फैसला सुनाया जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि वकीलों की अगर बात करें तो इस मामले की सुनवाई के दौरान में धारा 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अगर वकीलों की अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सहित हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और इन तमाम बड़े वरिष्ठ वकीलों ने अपने केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें जो हैं वो उनके द्वारा दिया गया। और दलील देने के बाद इस मामले में बताया गया था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए, जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम के लिए 370 को हटाना और वहां पर विकास के कार्यों को करना किस तरह से वहां पर जरूरी था। तो इन तमाम मसलों पर बाकायदा विस्तार से कोर्ट में दलीलों के दौरान में बताया गया। और इस वक्त में जो फैसला सुनाने का जो काम है वो चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 के निरस्त करने को संवैधानिक बताया। यानी कि ये जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था इस मामले पर, एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक जो टिप्पणी है ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके साथ ही एक तरह से समझा जा सकता है, देखिए पूरे इस फैसले का जो निचोड़ है वो अपने आप में क्लियर आता हुआ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 के निरस्त करने को संवैधानिक बताया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक वो इस मामले पर एक सहमति जताया गया है कि जिस तरह से वहां पर पिछले कुछ समय से वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में विकास हुआ, वहां पे लोकतांत्रिक प्रणाली को बहाल करने के लिए तमाम एक बेहतर तरीके से और कदम उठाए जा रहे हैं। और खास तौर पर
जिस तरह से साल 2019 के बाद का जो जम्मू कश्मीर है वह कैसे बदला है, इन तमाम मसलों को कोर्ट की सुनवाई के दौरान में बताया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा जो वकील हैं वो उनके द्वारा बताया गया था। उन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज कहा जा सकता है कि जो 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है वो आज फैसला सुना रही है। और उसी के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक जो टिप्पणी है वो टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 370 को निरस्त करने का जो संवैधानिक जो है फैसला वो सही है। और एक तरह से कहना है कि चीफ जस्टिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं, देखिए आज की जो ये तमाम जो टिप्पणियां हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी इस मसले को बेहद महत्वपूर्ण फैसला मानते हुए इस मामले पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं। और एक तरह से इस मामले पे स्पष्ट तौर पे जैसे ही आज फैसला सुनाने के लिए बेंच बैठी है उस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले सबसे पहला कहा कि देखिए आज जो है अलग अलग जो फैसले हैं उसमें से चीफ जस्टिस का कहना है कि एक ये जो सबसे पहला जो उनका जो फैसला था वो उन्होंने पढ़ना सुनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए जस्टिस कौल का और जस्टिस गवई और सूर्यकांत एक हैं, और जस्टिस कौल की जो सहमति वाली एक राय है और जस्टिस संजीव खन्ना से दोनों से सहमति जताई है। और फैसले अलग अलग लिखे गए हैं लेकिन सभी एक निष्कर्ष पे सहमत हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम जो आवाम है वहां के रहने वाले लोग हैं उनकी नजर जो है आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से सुप्रीम फैसला सुनाया जा रहा है उस पर नजर टिकी हुई है। और आज अगर कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट में आज मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कि आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में किस तरह से यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों की यहाँ पर आज जो संख्या है, तादाद है वो देखा जा सकता है। आज चाहे वकीलों की बात करें या पत्रकारों की बात करें, हर एक शख्स जो है इस मामले पर आज यहाँ पे पहुंचा हुआ है जो कि यहाँ पर जानना चाहता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज सुप्रीम फैसला क्या होगा। जिस तरह से जिस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर जिस तरह से फैसला लिया गया था और बाद में जिस तरह से उसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से इस मामले में 16 तारीखों पर लगातार उस मामले पर सुनवाई हुई। उस दौरान में चाहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात करें वो लोग ही यहाँ पे चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो भी सुनवाई के दौरान में पेश होते थे। और तमाम जो अपने तरफ से जो पक्ष है वो रखा जा रहा था। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला लिया गया था 5 अगस्त साल 2019 को, एक जो बड़ा फैसला लिया गया था, तो उन तमाम फैसले के खिलाफ में जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई थी उसके बारे में कहा गया था। देखिए सबसे वक्त एक महत्वपूर्ण एक टिप्पणी कोर्ट से आई है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराने होंगे। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। वो वहां पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए एक अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बड़ा फैसला जो है कोर्ट से आ सकता है, इस वक्त में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जितनी जल्दी से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 5 अगस्त साल 2019 को जिस तरह से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला लिया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को उन राज्यों को अलग किया गया था, लेकिन और अभी भी वो यूटी के अंतर्गत में आता है। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये एक महत्वपूर्ण और बड़ी टिप्पणी की गई है कि लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला बरकरार रहेगा। जो प्रण लिया गया था बीजेपी द्वारा और कहीं ना कहीं वो सफलता उसमें केंद्र सरकार को हाथ लगी है। जिस तरह से मशक्कत करनी पड़ी थी, इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा, चाहे विरोध का भी सामना करना पड़ा, पर ये हम मान सकते हैं कि बड़ी जीत यहां पर केंद्र की है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर के जो आवाम हैं उनके लिए भी एक बेहद खुशखबरी कही जा सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर में पिछले साल 2019 के बाद का